Welcome all. Today we will discuss another important topic in financial management, that is objectives of financial management. Now before discussing objectives of financial management, it is important we should learn what objectives are and why they are needed in financial management. So in order to make rational decisions in financial management, we need to have a thorough understanding of exactly what objectives are. And second thing is, objectives provide a framework for optimum decision making, and they are concerned with designing a method how organization should do its investing and financing decision, and these decisions act as a decision criteria. Objectives act as a goal or decision criteria on the basis of which various decisions in financial management are taken. These decisions are basically related to investment decision, either where organization should invest whatever money they have, then financing decision, from what are the various sources of finance they should use, or dividend decision, how much dividend should be distributed among the shareholder, as it is not mandatory to pay dividend to the shareholders. So these objectives act as a decision criteria, and so therefore clear understanding of objectives is must. Financial management is basically concerned with procurement and utilization of funds in the organization. So business funds should be utilized in a manner that value or earnings of the organization they are maximized. So taking into consideration this particular thing, objectives can be divided into two parts, that is profit maximization, wealth maximization, and there is third category, others. Now first we will discuss profit maximization. So profit maximization is considered as a objective because profit earning is the ultimate goal of every business organization. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है उनका होल एंड सोल पर्पस होता है प्रॉफिट अर्निंग, एक्सेप्ट चैरिटी के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करी है तो उसका मेन मोटिव सोशल बेनिफिट होगा, दे विल नॉट गो फॉर प्रॉफिट्स, except that all the activities, business activities, their aim is to earn profit. So that's why profit earning maximization should be the objective. Second thing, according to this approach, all the actions जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी करी है जिनसे उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं, दैट शुड बी परस्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दोज एक्शन, जितने भी आपके डिसीजन हैं जिनसे प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड. नेक्स्ट, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ कि बेसिकली जितने भी हम डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ डिसीजन: investment, financing and dividend policy decision, they should be oriented towards maximizing the profit. जब भी हमें ये डिसीजन लेने हैं, लाइक अगर आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो जैसे ही आपके पास टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, हम उन दो अल्टरनेटिव में से वही अल्टरनेटिव पिक करेंगे दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिनसे प्रॉफिट आपको कम अर्न कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी परस्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? तो प्रॉफिट जो टर्म है दैट इज बेसिकली यूज इन टू सेंस. फर्स्ट, it refers to the income which is paid to the owner for supplying capital to the business. अब ओनर जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसकी रिटर्न में जो उसे मिल रहा है दैट इज नोन एज प्रॉफिट. एंड सेकंड थिंग क्या होती है? It is an operational concept that signifies economic efficiency. Organization में जितनी भी activities हो रही है, whether they are efficiently done or not, that we come to know with the help of profits. In other words, profitability refers to a situation where output exceeds इनपुट. दैट इज, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेफर करती है उस सिचुएशन को जहां पर आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा, मीन्स सेल्स ज्यादा आ रही है rather than the cost of sales. तो अगर आपके वैल्यू कब क्रिएट होगी? when value created by use of resources is more than total input of resources. जितने आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं उससे ज़्यादा आपने अगर वैल्यू जनरेट कर दी है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफाई करती है. अब
प्रॉफिट एज ए डिसीजन क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है और क्यों ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डिसीजन क्राइटेरिया के लिए प्रॉफिट को हम जब भी यूज़ करेंगे, तो चाहे एसेट परचेज करने हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट चूज करना है, जितने भी डिसीजंस होंगे फाइनेंस में जो प्रॉफिटेबल है उन्हें हम एक्सेप्ट कर देंगे, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है जिससे आपको लॉसेस होने के चांसेस है वो रिजेक्ट कर देंगे। सो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे लाइफ में भी हम यही करते हैं, जहाँ हमें प्रॉफिट का कुछ चांसेस होते हैं वही चीज़ें हम करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्यों हुआ ये, why profit maximization should be considered as objective? First thing is that it is test of economic efficiency। जो आप resources यूज कर रहे हो बिजनेस में, आपने उन्हें efficiently यूज किया है या नहीं किया, तो प्रॉफिट उसके लिए एक बैरोमीटर एक्ट करता है। प्रॉफिट हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है। सेकेंड थिंग आ जाती है कि ये एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि हम वही डिसीजन लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में विच लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड आ जाता है कि अब बिजनेस सिचुएशंस जो होती हैं, कंडीशन जो होती हैं, वो स्टेबल नहीं रहती। ऑर्गेनाइजेशन में बूम भी आता है, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं, फिर मेच्योरिटी भी आती है, फिर डिक्लाइन भी आता है। तो इस केस में अगर आपके पास किसी टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वी शुड ग्रैब दैट, क्योंकि अगर आपको वो डिक्लाइन में चला जाएगा तो देन दीज प्रॉफिट्स विल हेल्प यू इन सर्वाइवल। थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि प्रॉफिट जो होता है इट एक्ट एज ए मेन सोर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जो आपके प्रॉफिट होते हैं जिन्हें हम डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो रिजर्व क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको आप फर्दर इन्वेस्ट करके बिजनेस में अपनी ग्रोथ के चांसेस को और इन्हेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉफिट जो होता है सोशल गोल्स को फुलफिल करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एम्प्लॉयज़ को बेटर सैलरीज पे ऑफ करोगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करोगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव से सोशल गोल्स भी हम फुलफिल कर पाते हैं। तो दैट्स वाई इट शुड बी कंसिडर्ड एज गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट इस कंसेप्ट के साथ भी कुछ फ्लॉज एसोसिएटेड हैं, जो लिमिटेशंस इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल नहीं होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट फ्लो आ जाता है इसमें एम्बिग्युइटी। अब प्रॉफिट टर्म जो है वो बहुत एम्बिगुअस है, हमें क्लियर ही नहीं है कि प्रॉफिट किसको कह रहे हैं। क्या आप प्रॉफिट जो होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या प्रॉफिट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने को बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की बात हो रही, ये बिफोर टैक्स प्रॉफिट आ रहे हैं कि आफ्टर टैक्स आ रहे हैं। क्या आप इन्हें टोटल एसेट्स जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय की है उसका सर्टेन रिटर्न ले रहे हो, सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न के टोटल एसेट्स पे ले रहे हो। तो प्रॉफिट के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है फॉर डिफरेंट पीपल। तो इसीलिए हमें क्लियर ही नहीं हो पाता कि कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। एक लूज एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा, हर कोई अपनी ही डेफिनेशन ले रहा है, उसको हम क्राइटेरिया नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई दिस क्राइटेरिया इज रिजेक्टेड। सेकंड रीजन आ जाता है, इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। कैसे इग्नोर करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विल बी एक्सेप्टेड विच मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जिससे आपका टोटल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा वो हम चूज करते हैं। बट दिस कंसेप्ट इग्नोर टाइमिंग। अब टोटल प्रॉफिट हो सकता है दो प्रोजेक्ट से सेम हो, बट कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनिशियली ही जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं इमीडिएटली आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं इन ए कांस्टेंट फॉर्म। बट कुछ प्रोजेक्ट होते हैं इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते, बट जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट अपनी मेच्योरिटी स्टेज में जाता है वहाँ आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम टाइमिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये दो प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं ए एंड बी। तो प्रोजेक्ट ए टाइम पीरियड 1 में या फर्स्ट ईयर में कह लो, या इनिशियल 5 ईयर्स हो सकता है, कोई भी ये टाइम पीरियड हो सकता है, उसमें 50 लाख प्रॉफिट दे रहा हो और इनिशियली ये कुछ भी नहीं दे रहा। सेकेंड टाइम पीरियड में दोनों के प्रॉफिट सेम है, थर्ड में इससे कम हो गया बट उसके कांस्टेंट रहे। तो अब इस केस में टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स टोटली डिफर कर रही है। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर दोनों से सेम आ रहे हैं तो हमें किसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए?
तो अकॉर्डिंगली कुछ लोग जो होंगे ए को प्रेफर करेंगे, बट कुछ लोग बी को भी प्रेफर करेंगे। बट यहाँ पर क्या आ रहा है कि इनिशियली आपको कम रिटर्न दे रहा है और लास्ट में भी आपको कम दे रहा है, बट ये जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है यहाँ से। तो इसलिए आई थिंक ये थोड़ा कांस्टेंट लेकर चल रहा है, तो वी शुड प्रेफर ए रादर देन द बी। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी ऑफ बेनिफिट। नॉट ओनली क्वालिटी quantity but quality refers to the certainty with which benefits can be expected। मीन्स आप कितने प्रोबेबिलिटी क्या है कि उतने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से आपको उतने बेनिफिट आएंगे। जितनी सर्टन रिटर्न होंगी, जितनी हाई सर्टेनिटी है, उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेटर है। और जो इन्वेस्टर भी होता है वो प्रेफर करते हैं सर्टन रिटर्न्स, और उन्हें चाहे स्मॉल रिटर्न्स भी मिले वो प्रेफर करेंगे रादर देन लार्ज रिटर्न जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो, क्योंकि जितना फ्लक्चुएटिंग है, जितना अनसर्टन है, उतना ज़्यादा रिस्क अटैच्ड है। तो इसीलिए रिस्क रिड्यूस करने के लिए हम सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स की ओर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रोजेक्ट है, ठीक, टू अल्टरनेटिव सेम जो पिछले केस में थे, एक रिसेशन में आपको रिटर्न दे रहा है, एक नॉर्मल पीरियड है, एक बूम है। तो रिसेशन जब डिक्लाइन चल रहा है तो उस केस में इस प्रोजेक्ट से कोई भी रिटर्न नहीं आ रही, पर नॉर्मल कंडीशन में दे आर गिविंग सेम रिटर्न। और बूम जब पीक में जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रही है। अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल रिटर्न जो आ रही है प्रोजेक्ट्स में वो सेम है, बट टोटल से ज़्यादा यहाँ पर वेरिएंस मैटर करता है। वेरिएंस, ये वेरिएशन देखो कितनी ज़्यादा है, 0 और 20, और यहाँ पर क्या है 9 और 11। तो कहीं ना कहीं ए अल्टरनेटिव जो है दैट इज मोर सर्टन, इज बेटर रादर देन द बी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हमें बेसिकली फ्लॉज भी पता चल गए। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो कुछ लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस की सो दैट इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो फर्स्ट चेंज क्या की, जो हमें टर्म वेग लगी थी उन्होंने कहा कि हम एक फिक्स कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड मोटिव, उसका मोटिव होना चाहिए मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट अगर आप ये ऑब्जेक्टिव भी लेते हो, स्टिल जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन में मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसका वेलफेयर फिर भी नहीं मैक्सिमाइज हो रहा। वो कैसे, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल इक्विटी शेयर इशू करती है, उससे जो प्रोसीड मिलते हैं उसको वो गवर्नमेंट बॉन्ड में या जिनसे आपको सर्टन रिटर्न आएंगे उनमें इन्वेस्ट कर देती है। बट इस केस में नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, बट जो ओनर का वेलफेयर है उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होंगी, रादर वो डिक्लाइन कर जाएंगी। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल टू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर थे और उनका प्रॉफिट 50,000 था और अर्निंग पर शेयर होगी 5 रुपीज पर शेयर। अब कंपनी ने 10,000 और एडिशनल शेयर इशू कर दिए एट 50 रुपीज पर शेयर, और जो इससे उनको पैसे मिले 5 लाख रुपीज, वो उन्होंने 5% आफ्टर टैक्स लगाकर कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे आपका प्रॉफिट 75,000 रुपीज हो गया, 25,000 की आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिल गई। बट स्टिल इस केस में भी आपकी ईपीएस कम हो जाएगी, क्योंकि 75,000 आप 20,000 से डिवाइड करेगा, 10,000 जो ऑलरेडी शेयर आपके पास थे और 10,000 जो बाद में। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैक्सिमाइज कर जाए, बट स्टिल अर्निंग पर शेयर जो होगी, जो शेयर होल्डर को पर शेयर अर्निंग आ रही है, दैट विल नॉट गेट मैक्सिमाइज। तो इसलिए स्टिल ये कंसेप्ट भी हम रिजेक्ट करते हैं। बाकी इसमें सेम फ्लोज है आपके, जो टाइमिंग को लेकर, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स को लेकर, दैट रिमेन सेम। एंड नेक्स्ट अल्टरनेटिव इसमें आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रॉफिट नहीं आप ले रहे, आप अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज करने को ही ऑब्जेक्टिव ले लो। तो अगर आप इसको लेते हो ऑब्जेक्टिव, फिर से वही टाइमिंग ऑफ बेनिफिट और क्वालिटी ऑफ बेनिफिट वाला कंसेप्ट जो है, फ्लोज इसमें आ जाते हैं। और नेक्स्ट फ्लो इसमें आ जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज करना चाहती है ईपीएस को, तो ये इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि आप डिविडेंड की फॉर्म में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करो और उसको री इन्वेस्ट कर दो जहाँ से, उन सोर्सेज में जहाँ से आपको पॉजिटिव रिटर्न आए, चाहे वो स्मॉल ही कितना हो। बट ऐसी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है उसके खुद के बहुत सारे
शेयर होल्डर्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। दे वांट कांस्टेंट रिटर्न्स, उनको फ्यूचर अनसर्टेनिटी लगती है। जब हम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस कि इसके डिटेल में फ्लॉज क्या आता है। फॉर द टाइमिंग अगर आप ये पॉलिसी भी फॉलो करते हो तो उस केस के भी कुछ लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इसीलिए ये वाला अल्टरनेटिव भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट मेन जो बेनिफिट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको हम लोग वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। अब शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये आता है कि कोई भी आप बिजनेस में जो भी एक्शन ले रहे हो, मीन्स जितने भी डिसीजन ले रहे हो बिजनेस में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड है, वो सारे ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिससे नेट प्रेजेंट वर्थ जो है, आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए और मैक्सिमाइज हो। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट। मीन्स इनपुट और आउटपुट की जो वैल्यू आपकी आ रही है, जितने आपको किसी प्रोजेक्ट से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उससे जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, जो फंड्स हम यूज करते हैं, और जितने आप फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कैश आउटफ्लो जो हो रहा है, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कंसीडर की जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट शुड बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज जो है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मैक्सिमाइज हो जाएगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कंसीडर करनी है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली आ जाती है आपकी कैश इनफ्लोस, जो आपको n ईयर्स में आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के। मींस अगर प्रोजेक्ट 5 ईयर्स चल रहा है तो 5 ईयर्स के आपको जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, कैश फ्लोज की बात कर रही है। कैश फ्लोज और प्रॉफिट में अगर आपको डिफरेंस क्लैरिफाई करना है तो मीनिंग ऑफ फाइनेंस वाली वीडियो आप प्रेफर कर सकते हो। उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग डेफिनेशन और फाइनेंस का जब डिफरेंट अकाउंटिंग व्यू और फाइनेंशियल व्यू बताया देन वी हैव डिस्कस थी। तो कैश फ्लो जितने भी जनरेट हो रहे हैं, उन कैश फ्लो के इनफ्लो जो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी है और प्रेजेंट वैल्यू लेनी है आउटफ्लोज की। मींस अगर आपको से 4th ईयर में 10,000 रुपीज आ रहे हैं तो इन 4th ईयर में जो आपको 10,000 रुपीज अगर प्रॉफिट आ रहा है उसकी आज 0th ईयर में क्या वैल्यू है। ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी चीज की, उसके लिए हम एक डिस्काउंट रेट लेते हैं और डिस्काउंट रेट से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आज आ जाएगी। इसको डिटेल में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब चैप्टर डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल। ऐसे ही आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज भी लेनी है। मींस टाइम टू टाइम जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या आ रही है। एक तो फ्यूचर वैल्यू आ गई ना कि जब आप इन्वेस्ट करोगे उतनी वैल्यू, आज उसकी क्या वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आप पॉजिटिव वाले प्रोजेक्ट्स लोगे उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या आ जाती है? जितने भी किसी शेयर होल्डर के पास शेयर है मल्टीप्लाई द करंट स्टॉक प्राइस, जो उसकी आज मार्केट प्राइस चल रही है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस शेयर होल्डर की वेल्थ आ जाएगी। ये जो मार्केट प्राइसेस होती हैं ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं और जितनी भी करंट हैपनिंग्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं उनका इम्पैक्ट जो है इन शेयर प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट होता रहता है। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो नीचे एक स्क्रॉल बार में डिफरेंट शेयर प्राइसेस कंपनी के दिखाते हैं, कुछ ग्रीन में होती हैं कुछ रेड में, तो वो डेली इवन आफ्टर ए फ्यू आवर जब वर्किंग चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में ये विद इन मिनट्स भी चेंज होती रहती है। तो क्लियरली ये न्यूज़ जो उस कंपनी के रिलेटेड आती हैं वहाँ पर जितने भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो वो एक्शन ले रही है, उन सब का इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टॉक प्राइसेस जो है उसको मैक्सिमाइज करने से हमारी वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हो जाती है। उसके लिए आपको वही डिसीजन लेने हैं जिससे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है एनपीवी पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी ग्रेटर देन द आउटफ्लोज। अब इसके लिए रैशनल क्या है, क्यों ये एक्सेप्टेबल है? फर्स्ट थिंग आ जाती है एग्जैक्टनेस। ये इसमें वेग नहीं है, जैसे प्रॉफिट आपको टर्म क्लियर नहीं हो रही थी कौन सा प्रॉफिट लें, इसमें हमें कैश फ्लोज क्लियरली
कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो कंसेप्ट थोड़ा वेग आ जाता है, लेकिन कैश फ्लो का सर्टेनिटी है। तो कैश फ्लोज अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं इनफ्लोज को, प्रेजेंट वैल्यू को, और आउटफ्लोज को रिड्यूस कर लेते हैं, तो हमारी जो है एनपीवी पॉजिटिव आती है। तो उस फॉर्मूला से ये वेग नहीं है, ये एग्जैक्ट है। और सेकंड थिंग इज दैट क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करें, हम उसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपकी फ्यूचर वैल्यू है उसकी आज वर्थ क्या है। अगर आपको 10 साल बाद 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं तो उनकी 1 लाख रुपीज की आज वैल्यू क्या है, अगर हम उसको कंसीडर करें तो दैट इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक हम डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है क्वांटिटी भी कंसीडर करता है और क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स को भी कंसीडर करता है। दैट्स व्हाई इट इज मोर एक्सेप्टेबल। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फ्लोज थे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट के अपने फ्लोज है। तो फर्स्ट इसका फ्लोज आ जाता है कि अदर देन शेयर होल्डर्स बहुत सारे और फाइनेंशियल होल्डर्स होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर, तो उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, उनकी वेल्थ नहीं मैक्सिमाइज हो रही। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के केस में स्टॉक होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और फर्म की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो डिफरेंट कंसेप्ट है। फर्म की मैक्सिमाइजेशन की आप बात करोगे तो डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, जिनको इस फॉर्मूला में कंसिडर नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाता है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और मैनेजर जो होते हैं वो उसे मैनेज करते हैं, दे रन द शो ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। तो इस केस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है खुद के ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। तो वहां पर भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मैनेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेगा रादर देन द शेयर होल्डर। ये कंसेप्ट अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है तो हम शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और कस्टमर जिनसे आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेल करिए जिसके कारण कस्टमर के लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो आप किसके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, उस किसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो कस्टमर्स का कहीं भी रोल कंसीडर नहीं हो रहा, हम कस्टमर को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। और फर्दर ये इग्नोर करता है सोशल बेनिफिट और सोसाइटल बेनिफिट के कंसेप्ट को। हम शेयर होल्डर्स की ही बात कर रहे हैं बट सोसाइटी एज ए होल हम कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे। हम ये कंसेप्ट जो है ऐसी बातें नहीं करता कि इससे सोसाइटी पूरी का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट को हम क्रिटिसाइज करते हैं। होप ये आपको लेक्चर क्लियर हुआ हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमें प्रॉफिट का मीनिंग ही नहीं क्लियर होता कि बिफोर टैक्स लेने या आफ्टर टैक्स लेने। टोटल प्रॉफिट्स पे ज्यादा फोकस हो जाता है रादर देन क्वालिटी। वो प्रॉफिट आपको कितनी सर्टेनिटी के साथ मिल रहे हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। इसी कारण वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि ओनली दोज प्रोजेक्ट को हम कंसिडर करेंगे जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है मैक्सिमाइज होगी। दैट इज आपके जो हम वो प्रोजेक्ट लेंगे जिनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। और ये प्रोजेक्ट कंसीडर करने से हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, जो कि होती है नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके पास मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस को अगर हम मैक्सिमाइज कर देते हैं अपनी पॉजिटिव एनपीवी के साथ तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर की वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये एक एग्जैक्ट कंसेप्ट है। बोथ क्वालिटी, टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स दोनों को कंसीडर कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको इग्नोर करता है, फिर मैनेजर कस्टमर को इग्नोर कर रहा है, सोसाइटल बेनिफिट को इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए हम इस कंसेप्ट के भी कुछ फ्लॉज है, बट स्टिल हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल लेकर चलते हैं। मोस्टली ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में। होप ये लेक्चर आपको क्लैरिफाई कर दे जो क्लियर डिस्टिंक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी
क्वेरी, कोई भी आपका डाउट है, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. I will try to reply that. Thanks for watching.